Assalamu alaikum students. Illustration number 8. Dr. Abhinav Bharat started a practice of medical practitioner on 1st April 2019. He gives you the receipts and payment account for the year ending 31st March 2020 and the adjustments. Prepare income and expenditure account and balance sheet for the year ending 31st March 2020. First we see the question. Dr. Abhinav Bharat receipts and payment account for the year ending 31st March 2020. First receipt side, 2 cash introduced, 2 visit fees, 2 receipts from dispensary, 2 sundry receipts. Now listen students, यहाँ रिसिप्ट साइड दिया हुआ है 2 कैश इंट्रोड्यूस्ड, राइट. इंट्रोड्यूस करना मीन्स अपना कैश बिजनेस में लगाना, इन्वेस्टिंग आवर ओन मनी इनटू आवर बिजनेस, राइट. बट इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स अ एनपीओ. सो यहाँ पे एनपीओ में हमने हमारा खुद का पैसा लगाए, इट्स कॉल कैपिटल फंड. नाउ कम टू पेमेंट साइड, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, ड्रग्स, सैलरीज, रेंट, कन्वेंस, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जनरल्स, ड्राइंग्स एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन. नाउ लिसन स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है. Instead of to balance brought down, he write to cash introduced. Okay, it's called capital fund because it's a new NPO started. Okay, now come to adjustment. Adjustment number 1, receipts in arrears are visit fee rupees 2000 and dispensary rupees 500. Means dispensary और receipts के अंदर डिस्पेंसरी और विजिट फीस के अंदर हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम है. एरियर्स मीन्स आउटस्टैंडिंग इनकम. नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट रुपीज़ 500, सैलरीज रुपीज़ 1000. एडजस्ट इसका क्या करते हैं हम, ऐड इन एक्सपेंसेस, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. नेक्स्ट 3, स्टॉक ऑफ ड्रग वॉज रुपीज़ 1000. सो स्टॉक ऑफ ड्रग वॉज रुपीज़ 1000 मीन्स इट्स कॉल अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स. ये कहाँ आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड. एंड लास्ट, डेप्रीशिएट फर्नीचर एट द रेट 8% पर एनम एंड इक्विपमेंट रुपीज़ 500. सो लेस फ्रॉम फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एंड सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड टू इक्विपमेंट. क्लियर है? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ मूव फॉरवर्ड टू द आंसर. First heading in the book of Dr. Abhinav Bharat, income and expenditure account for the year ending 31st March 2020. First we solve on expenditure side. Number 1, 2 drugs. There is an adjustment on drugs, so we write in inner column 7000. Less stock of drugs. This stock was shown in the adjustments. So inner column amount 1000. So outer column 6000. Next 2 salaries. There is an adjustment on salaries, so we write in inner column amount 12,000, then add outstanding salary in inner column 1000, so outer column 13,000. Next to rent, there is an adjustment on rent, so we write in inner column 6000, add outstanding rent inner column 500, so outer column 6500. Next to conveyance, there is an adjustment on conveyance, so inner column amount rupees 4000. Okay, again there is an adjustment on conveyance, but यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ एडजस्टमेंट के बारे में लिखा हुआ नहीं है. सो व्हाट वी डू, वी हैव टू ऐड वन एडजस्टमेंट, दैट इज़ 40% कन्वेंस आर यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस. जैसे स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन में एक मिस्टेक है. मिस्टेक ये है कि यहाँ पे कन्वेंस के लिए एक एडजस्टमेंट लिखा हुआ नहीं है. सो यू जस्ट हैव टू ऐड वन एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट नंबर 5, 40% ऑफ कन्वेंस हैव बीन यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस. सो कन्वेंस में से क्या करेंगे, लेस 40% फॉर डोमेस्टिक पर्पस. सो इनर कॉलम 1600, सो आउटर कॉलम 2400. Next to stationery, outer column 500.
2 electrical charges, outer column 5000, 2 generals, outer column 500, 2 depreciation, underline furniture, inner column 640, 2 equipment, inner column 500, outer column 1140. Now come to income side. By visit fees, there is an adjustment on visit fees, so we write in inner column 10,000, add outstanding, inner column 2,000, so outer column 12,000. Next, by receipts for dispensary, there is an adjustment on receipt for dispensary, so we write in inner column 30,000, add outstanding, inner column 500, so outer column 30,500. Next, by sundry receipt, outer column 5,000. Now all the items have been posted, and after completion of income and expenditure account, we earn surplus, so we write in expenditure side to surplus amount 12,460. In bracket we write excess of income over expenditure, and this surplus has to be added in capital fund. Now move toward the balance sheet. First heading, balance sheet as on 31st March 2020. First, on liability side, capital fund. The capital fund means that is cash introduced, shows on the receipt side. Okay, so we write capital fund, inner column amount 25,000, add surplus 12,460. okay, एंड यहाँ पे ड्राइंग्स वगैरह के भी काफ़ी सारे मिसिंग्स है, तो यहाँ पे ड्राइंग दी हुई है अमाउंट 15,000, सो लेस फ्रॉम द कैपिटल, ड्राइंग 15,000. और यहाँ पे एक और एक एडजस्टमेंट मिसिंग है, एडजस्टमेंट नंबर 6. मिस्टर अभिनव भारत टेक एडिशनल ड्राइंग फॉर ₹1,600. इसमें एक और एक एडजस्टमेंट मिसिंग है, तो आपको और एक एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखना है. सो लेस एडिशनल ड्राइंग 1,600, सो आउटर कॉलम 20,860. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटर कॉलम 500, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटर कॉलम 1,000. नाउ कम टू असेट साइड. नंबर 1, फर्नीचर. there is an adjustment of furniture, so we write in inner column 8,000 less 8% depreciation, inner column 640, outer column 7,360. Next, equipments, there is an adjustment on equipments, so we write in inner column 10,000 less depreciation. Okay, so कितना depreciation था, amount 500, so outer column 9,500. Next, stock of drugs, outer column 1,000, outstanding visit fees, outer column 2,000, outstanding receipts from dispensary, outer column 500, and last जो लिखा हुआ था buy balance brought down, so write cash in hand amount 2,000. So now all the adjustment and all the items have been posted, and our balance sheet is tally, and the tally amount is 22,360, 22,360. Okay students, now move forward to the next question. Okay students, illustration number 9. This one is a complicated question, ये थोड़ा tough है, so complete focus on the questions. Okay, following is the receipts and payment account of Parnell Sports Club Pune, and additional information given below. You are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on the same day. First, receipt and payment account. First, receipt side, to balance brought down 5,000. It's opening balance and we ignore the opening balance. हम यहाँ पे opening balance को ignore करते हैं in each and every question. Next, subscription 2016-17, 2017-18 3,000 and 18-19 70,000. Now listen students, हमारा ईयर कौन सा है, हमारा करंट ईयर कौन सा है.
So our current year start from 1st April 2018 to 31st March 2019. मतलब हमारा करंट ईयर कौन सा है, 2018 और 2019. बट यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कहाँ से दिया है, 2016, 17 एंड 17, 18 मीन्स प्रीवियस ईयर एंड प्रायर टू प्रीवियस ईयर कॉल्ड PY एंड PPY. प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा हुआ, 17 एंड 18 एंड PPY प्रायर टू प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा हुआ, 16 to 17. क्लियर है. करंट ईयर इज 2018-19, current year is 2018-19, previous year is 2017-18 and prior to previous year is 16-17. So हम यहाँ पे कौन सा लेंगे, सिर्फ 2018 and 19 70,000. नेक्स्ट डोनेशन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस एंड 2 टूर्नामेंट रिसिप्ट. कम टू पेमेंट साइड, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ रीपेड मतलब पे कर दिया गया है. देन सैलरीज, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, म्यूनसिपल टैक्सेस, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जनरल एक्सपेंसेस, बिलियर्ड एक्सपेंसेस. बिलियर्ड एक्सपेंसेस मतलब जो पूल टेबल नहीं क्या होता है, स्नूकर टेबल, उसको बोलते हैं बिलियर्ड. नेक्स्ट रिपेयर टू ग्राउंड. देन टूर्नामेंट एक्सपेंसेस एंड लास्ट buy balance carried down, cash in hand and cash at bank. Now come to adjustment. Adjustment number 1, 50% donation are for building fund. मतलब क्या हुआ, जो भी डोनेशन है उसमें से हाफ डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए यूज़ किया गया है. एडजस्टमेंट नंबर 2, 70% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड. मतलब जो भी एंट्रेंस फीस है उसमें से 70% एंट्रेंस फीस हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे. नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹5,000 फॉर द ईयर 2016-17 एंड ₹1,000 फॉर द ईयर 17-18 आर स्टिल इन एरियर्स. मीन्स वॉट, 2016-17 मीन्स प्रायर टू प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन ₹500 अभी तक के मिलना बाकी है. एज वेल एज प्रीवियस ईयर 2017 और 18 का भी ₹1,000 मिलना बाकी है. क्लियर है. 16-17 PPY प्रायर टू प्रीवियस ईयर का 500 मिलना बाकी है और 17 एंड 18 प्रीवियस ईयर का ₹1,000 मिलना बाकी है. नेक्स्ट, 4th, फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयर इन द बुक एज ऑन 1st April 2018. अब ये बैलेंसेस क्यों दिए गए, वाई, बिकॉज थ्रू दिस बैलेंसेस वी कैन कैलकुलेट आर कैपिटल फंड. नंबर 1, बिल्डिंग फंड 47,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000, लैंड 1,50,000, स्पोर्ट्स मटेरियल ₹30,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 एंड 17 2,500 एंड 17 एंड 18 4,000. जैसे स्टूडेंट देखो यहाँ पे 16, 17, 17, 18 एक साथ 3 बार अमाउंट दिए गए. क्लियर है. तो ध्यान से पहले क्वेश्चन में देखो. इन रिसिप्ट साइड 2016-17 प्रायर टू प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन कितना लिखा हुआ है, 2,000. उसके साथ साथ एडजस्टमेंट नंबर 3 में उसने क्या बोला है कि ₹500 जो है वो प्रायर टू प्रीवियस ईयर मतलब 16 और 17 का पेंडिंग है. सो 2,000 + 500 कितना हुआ, 2,500. वही सेम उसने एडजस्टमेंट नंबर 4 में बताया है. सेम एज और रिसिप्ट साइड 2017 एंड 18 अमाउंट कितना लिखा हुआ है, 3,000. और वही एडजस्टमेंट नंबर 3 में उसने कितना बताया है, 17 एंड 18 का 1,000 पेंडिंग है. तो 3 + 1 कितना हुआ, 4,000. वही उसने एडजस्टमेंट नंबर 4 में बताया है, ₹4,000. क्लियर. सो यहाँ पे एकदम ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हमें यहाँ पे क्लियरली ईयर मेंशन किए गए हैं. बस हमें प्रीवियस ईयर और प्रायर टू प्रीवियस ईयर उसको सिर्फ याद रखना है. ओके. रिसिप्ट में भी सेम अमाउंट है. उसके बाद उसने एडजस्टमेंट नंबर 3 में बताया है कि कौन कौन सा अमाउंट उसमें से मिलना बाकी है. और फिर उसने एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या बताया है कि इतना पूरा का पूरा मिलना ही बाकी है. क्लियर है. नाउ एडजस्टमेंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर ₹8,000.
करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या करते हैं, ऐड इन सब्सक्रिप्शन, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। एंड लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल वॉज ₹8,000 on which depreciation is to be provided at 12.5% per annum। मीन्स वॉट, स्पोर्ट्स मटेरियल का हमारे पास एट द एंड ऑफ ईयर स्टॉक कितना बचा, 8,000 का, जिस पे हमको 12.5% से डेप्रीसिएशन लेना है। उसी तरह से पेमेंट साइड दिखा हुआ है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अमाउंट 50,000। ओके, एंड देन एडजस्टमेंट नंबर 4 में उसने बताया है स्पोर्ट मटेरियल 30,000। ओके, तो यहाँ पे हमें उसने पूरा ओपनिंग स्टॉक भी बताया है, परचेसेस भी बताया है और क्लोजिंग स्टॉक भी बताया है। एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन आप लोग को एकदम ईजीली समझ जाए। क्लियर है? यहाँ तक कि आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एडजस्टमेंट को सीरियल वाइज आपको लगाना है कि हम एडजस्टमेंट किस तरह सॉल्व करेंगे और कौन सा एडजस्टमेंट कौन से आइटम से रिलेटेड है। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड द आंसर। Okay students, so first heading, income and expenditure account for the year ending 31st March 2019. First we solve expenditure side. Number 1, 2 salaries, outer column 10,000. By electricity charges, outer column 4,000. 2 municipal taxes, outer column 2,700. Now come to sports material. So we write 2 sports material, underline opening stock 30,000 जो हमको एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया हुआ है। देन ऐड परचेसेस, इनर कॉलम 50,000 जो हमको पेमेंट साइड दिया हुआ है। सो 30 + 50, इनर कॉलम 80,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक जो हमको एडजस्टमेंट नंबर 6 में दिया हुआ है, इनर कॉलम 8,000। सो आउटर कॉलम 72,000। नेक्स्ट टू जनरल एक्सपेंसेस, आउटर कॉलम 500। टू बिलार्ड एक्सपेंसेस, आउटर कॉलम 3,000। to repairs to ground, outer column 500, to depreciation on sports material amount ₹1,000। अब ये 1,000 जो हम डेप्रिसिएशन निकाले कौन से अमाउंट पे निकालेंगे, 8,000 रुपीज़ जो क्लोजिंग स्टॉक है उस पर। नाउ कम टू इनकम साइड। नंबर 1, बाय टूर्नामेंट रिसिप्ट्स, there is an adjustment on tournament receipts, so we write in inner column amount 60,000 less tournament expenses, inner column 50,000, so outer column 10,000. Next, by subscription, and our current year is 2018 and 19, and there is an adjustment on subscription, so we write in inner column 70,000. Add outstanding which will be shown in the adjustment number 5. कितना है हमारा आउटस्टैंडिंग, 8,000, so 70 + 8, outer column 78,000. Next, by donation, there is an adjustment on donations, we write in inner column 15,000 less 50% for building fund, so inner column 7,500, so 15,000 minus 7,500, outer column 7,500. Next, by entrance fees, there is an adjustment on entrance fees, so we write in inner column 1,700 less 70% capitalized, amount 1,190, so outer column 510. And last, by life membership fees, outer column 17,000. After posting all the items, we have earned surplus, so we write on expenditure side to surplus amount 19,310, and in other word we can say excess of income over expenditure. Now move forward to the balance sheet. Okay, first heading, balance sheet as on 31st March 2019. Now listen students, यहाँ पे देखो आपको एक वर्किंग नोट में भी बैलेंस शीट दी हुई है और उस पर हेडिंग कौन सी है, 31st March 2018, 31st March 2018 और 1st April 2018 सेम डेट। तो मतलब ये बैलेंस शीट जो दी हुई कौन सी बैलेंस शीट है, इट्स अ ओपनिंग बैलेंस शीट जिसके अंदर हम एडजस्टमेंट नंबर 4 के सारे बैलेंसेस पुट करेंगे। ओके,
So after putting all the balances, we have earn a कैपिटल फंड, जिससे हमको कैपिटल फंड हमारा पता चलेगा. सो फर्स्ट वी सॉल्व अ वर्किंग नोट बैलेंस शीट. सो बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018. नंबर 1 लैंड. फर्स्ट वी सॉल्व असेट साइड. नंबर 1 लैंड, outer column 1,50,000, and these all amount are shown in the adjustment number 4. लिसन स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, ये सारे अमाउंट जो है ये कब दिए हुए हमको, ये हमको एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिए हुए, जहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक एज ऑन 1st April 2018. मतलब ये बैलेंसेस हमको साल के स्टार्ट में पहले दिन शो किए गए थे. सो विद द हेल्प ऑफ दिस अमाउंट वी हैव इजीली नो आर कैपिटल फंड. So land, outer column 1,50,000, sports material, outer column 30,000, then outstanding subscription 2016-17 2,500, 17-18 4,000, outer column 6,500, and cash in hand rupees 5,000. Next, liability side, building fund 47,000, bank overdraft 32,000. So after completion of balance sheet, we have earned a capital fund that is 1,12,500. ये कैसा आया? पहले हम asset side की टोटल प्लस करेंगे, उसके बाद liability side की टोटल करेंगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा कैपिटल फंड होगा. तो हमको कैपिटल फंड कितना आया? 1,12,500. Now move towards the actual balance sheet. Balance sheet as on 31st March 2019. First we solve a liability side. Number 1 capital fund, inner column 1,12,500, add 70% entrance fees 1,190, add surplus 19,310. So outer column 1,33,000. Next, building fund, inner column 47,000, add 50% donation, that is 7,500. So outer column 54,500. Next, cash in hand, come to asset side, cash in hand 700,000, cash at bank 14,000, outstanding subscription. First PPY, prior to previous year 2016-17, inner column 500, 2017-18 previous year 1,000, and 2018-19 current year 8,000. So outer column 9,500. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हम PPY और PY सब्सक्रिप्शन क्यों लिख रहे हैं? तो वहाँ पे उसने एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या बोला है? दीज सब्सक्रिप्शन आर स्टिल एरियर्स. मतलब ये सब्सक्रिप्शन हमें अभी तक के मिलना बाकी है. इट्स आर इनकम, और जो भी इनकम हमें मिलना की होती है वो हमारी असेट्स होती है. क्लियर? Next, land, outer column 1,50,000, then sports material, inner column 8,000, less 12.5% depreciation, inner column 1,000, outer column 7,000. Now all the items and adjustment have been posted and our balance sheet is tally, and the tally amount is rupees 1,87,500, 1,87,500. ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग इस क्वेश्चन को घर पे अच्छे से ट्राई करो और सब्सक्रिप्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना. वाई? बिकॉज सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सिर्फ क्वेश्चन, जिसने एग्जामिनर ने आपको सिर्फ कंफ्यूज किया है बार बार अमाउंट दे के, जबकि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि वहाँ पे डेट शो की गई है. ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम.